Hello everyone. Now welcome again in your video lecture class. Today I am going to talk about the topic continuous and comprehensive evaluation, which is related to the B.Ed semester 2, the paper 8 assessment for learning. मैं आप सबों का पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ ये वीडियो लेक्चर क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी सतत एवं व्यापक या समग्र मूल्यांकन। यह टॉपिक B.Ed सेमेस्टर 2 के अंतर्गत पेपर 8 में यूनिट 5 में उपलब्ध है। जैसा कि आप सब लोग अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उस अनुसार उम्मीद करते हैं कि आप सभी सेफ होंगे, अच्छे होंगे घर में, और आपका जो स्टडी है वो कंटिन्यूस वे में लगातार अच्छी तरीके से चल रहा होगा। अब मैं जब विषय वस्तु की बात करूं तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किया गया, और इसके आधार पर परिकल्पना ये थी कि ये व्यवस्था शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, दैट मीन्स टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में एक सार्थक पहल होगी, जिससे व्यवस्थाएं अच्छी तरह से चलें और छात्रों को किसी प्रकार की कोई दबाव न हो, क्योंकि जब कहीं भी परीक्षा की बात आती है छात्र भयभीत हो जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, खासकर सीसी, जिसमें कि छात्र के ऊपर में दबाव नहीं है, स्ट्रेस फ्री है, भय का कोई माहौल नहीं होता है, और हर तरह के बच्चों के लिए एक मौका होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वह अपनी अच्छी से अच्छी चीज़ों को शिक्षक को दिखा सके और उसी चीज़ को वह अपने मजबूती से पेश कर सके, ताकि उस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सके और मूल्यांकन उसी आधार पर हो। कहने का तात्पर्य यह है कि छात्रों की जो अच्छी चीज़ें हैं उसको कैसे प्रमुखता के साथ पेश की जाए और वही चीज़ें प्रमुखता के आधार पर दिखाई जाए, और वही बात असेसमेंट यानी आकलन में और मूल्यांकन में शामिल किया जाए। तात्पर्य स्पष्ट है कि चाइल्ड सेंटर्ड हो, बच्चों के अनुसार हो, जिससे कि बच्चे का विकास हो और बच्चे शिक्षा के प्रति उनका लगाव हो, न कि ड्रॉप आउट या वेस्टेज या स्टेग्नेशन के कंडीशन आगे बढ़े। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो कि 9 या 10 स्टैंडर्ड में आते आते उन्हें भय व्याप्त होता है, और इस कारण बहुत सारे लोग पढ़ाई जो है वो अधूरी यानी आधी अवस्था में ही छोड़ देते हैं। इन सभी समस्याओं को दूर करने का एक अच्छा ऑप्शन है CCE। अब मैं आपको इसे विस्तार से बताने जा रहा हूँ। Now, first clarify the syllabus. Unit 5 Continuous and Comprehensive Evaluation and Credit Based Evaluation. Continuous Evaluation Concept, Purpose and Use in Teaching Learning Process. Comprehensive Evaluation Concept, Purpose and Use in Teaching Learning Process. Credit Based Evaluation Function, Strength and Limitation. Now we have emphasized the topic Continuous and Comprehensive Evaluation. Concept of Continuous and Comprehensive Evaluation, CCE, that means Continuous and Comprehensive Evaluation, refers to a system of school-based evaluation of students that covers all features of students' development. It is a developmental process of assessment that stresses twofold objectives, that is on continuousness in evaluation and assessment of broad-based learning and behavioral outcomes on the other. According to this scheme, the term continuous is meant for evaluation of identified aspects of students' growth and development. That is a continuous process rather than an incident built into the total teaching learning process and spread over the whole duration of the academic session. The second term, comprehensive, means that the scheme tries to cover both the scholastic and co-scholastic aspects of students' growth and development. Continuous and Comprehensive Evaluation was a procedure of assessment directed by the Right to Education Act of India in 2009. This proposal to assessment was introduced by state governments in India as well as by the Central Board of Secondary Education in India for students of 6th to 10th class and 12th in some schools. Now I am again repeat the
last point. This proposal to assessment was introduced by the state governments in India as well as by the Central Board of Secondary Education in India for students of 6th to 10th class and 12th in some schools. Purpose of continuous and comprehensive evaluation. The main purpose of continuous and comprehensive evaluation, number one, CC helps in minimizing the stress on children, make assessment comprehensive and regular, provide a space for the teacher for fruitful teaching, provide a tool for detection and corrections, produce learners with greater skill. It makes the process of teaching and learning a learner-centered activity. To make the assessment process an essential part of the teaching learning process, to make a fair judgment and take timely decision for learners' growth, learning process, learning space and learning environment, to provide a scope for learners for self-assessment, to use the evaluation process for improving students' achievement through detection and correction. Now, features of continuous and comprehensive evaluation. The continuous aspects of CCE takes care of continual and periodicity features of assessment. The comprehensive elements of CCE takes care of assessment of all-round development of the child's personality. The continuous and comprehensive evaluation includes both scholastic as well as co-scholastic aspects of the pupil's growth. Scholastic aspects cover curricular areas of subject-specific areas, while co-scholastic aspects consist of life skill, co-curricular activities, attitude, and values. Assessment in co-scholastic areas is done using the number of techniques on the basis of recognized criteria, while assessment in life skill is done on the basis of indicators of assessment and checklists. अब मैं इसे हिंदी में स्पष्ट कर दूं। सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन के अवधारणा और अर्थ। सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के स्कूल आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली को संदर्भित करता है जो छात्रों के विकास की सभी विशेषताओं को शामिल करता है। यह मूल्यांकन की एक विकासात्मक प्रक्रिया है, यानी मूल्यांकन और निरंतर मूल्यांकन के आधार पर व्यापक रूप से सीखने और व्यवहार संबंधी परिणामों पर निरंतरता जो 2 गुना उद्देश्यों पर जोर देती है। इस योजना के अनुसार सतत शब्द का अर्थ छात्रों के विकास और विकास के पहचाने गए पहलुओं का मूल्यांकन एक घटना के बजाय एक सतत प्रक्रिया है जो कुल शैक्षणिक सत्र के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बनाया गया है और पूरी अवधि में फैला हुआ है। दूसरा शब्द व्यापक का अर्थ है कि यह योजना छात्रों के विकास और विकास के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पहलुओं का आवरण करने की कोशिश करती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की एक प्रक्रिया थी जिसे 2009 में भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा निर्देशित किया गया था। छठी से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए और कुछ स्कूलों में 12वीं के लिए मूल्यांकन का यह प्रस्ताव भारत में राज्य सरकारों साथ ही साथ भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पेश किया गया था। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों पर तनाव को कम करने में मदद करता है। व्यापक मूल्यांकन नियमित रूप से मूल्यांकन करें। फलदायी शिक्षण के लिए शिक्षक रिक्त स्थान का पता लगाएं। सुधार का पता लगाने के लिए उपकरण प्रदान करें। शिक्षार्थियों को अधिक कौशल के साथ जोड़ना, यह सीखने सिखाने की गतिविधि को और सीखने की प्रक्रिया बनाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा बनाते हैं। सीखने वाले के विकास, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की गति और सीखने के उचित वातावरण के लिए उचित समय पर निर्णय लेते हैं। शिक्षार्थियों के लिए आत्म खोज के लिए गुंजाइश प्रदान करते हैं। पहचान और सुधार के माध्यम से छात्र की उपलब्धि में सुधार के मूल्यांकन प्रक्रिया का उपयोग करें। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं। अब इस विशेषताओं को मुख्य रूप से आप लोग ध्यान दें। सतत और व्यापक मूल्यांकन का निरंतर पहलू मूल्यांकन की निरंतर और अवधि विशेषताओं का ध्यान रखता। अवधि यानी समय। सतत और व्यापक मूल्यांकन के व्यापक तत्व बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के आकलन का ध्यान रखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। शिशुओं की वृद्धि के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक और सह शैक्षिक यानी स्कॉलस्टिक यानी को स्कॉलस्टिक दोनों पहलू शामिल हैं। शैक्षिक पहलू पाठ्यक्रम क्षेत्रों या विषय विशिष्ट क्षेत्रों को आवरण करते हैं।
अर्थात कवर करते हैं, जबकि सह शैक्षिक पहलुओं में जीवन कौशल, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों, अभिवृत्ति और मूल्य शामिल हैं। सह शैक्षिक क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त मानदंडों के आधार पर तकनीकों की संख्या का उपयोग करके किया जाता है, जबकि जीवन कौशल में मूल्यांकन आकलन और चेकलिस्ट के संकेतक के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार से मैंने इसे स्पष्ट किया। अभी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, मैं मुख्य रूप से सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में मैं आपसे आज जो डिस्कस किया उसमें खासकर उनके कॉन्सेप्ट यानी मीनिंग, अर्थ और धारणाएँ क्या थी, साथ ही साथ उसके उद्देश्य क्या थे और विशेषताओं के बारे में आपसे विस्तार से बात किया। इस उद्देश्य और विशेषताओं से ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि सतत समग्र मूल्यांकन खासकर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी यानी माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक में महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और मजबूत और सार्थक बनाया जा सकता है। और शुरुआत में ही मैंने बताया कि सीसी एक वरदान है, एक गुण के रूप में काम करती है और छात्रों को छात्र के आधार पर काम करने में मदद करती है, खासकर शिक्षक के लिए। और शिक्षक इस क्रिया को अगर क्लासरूम में अच्छी तरह से लागू करें तो ये बहुत अच्छी तरह से काम कर सकती है और छात्रों को जो है वह स्ट्रेस या दबाव जो रहती है या परीक्षा के प्रति या मूल्यांकन आकलन असेसमेंट के द्वारा जो उनके दिमाग में भय रहता है उसको दूर किया जा सकता है और छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में मैं फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ इसी की जो रिमेनिंग पार्ट है उससे बात करूँगा। तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें ताकि समय पर आपको वीडियो मिल जाए और आप इससे संबंधित कोई भी अगर बात हो तो उसको कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें। आज के लिए धन्यवाद।